Hello, Captain Pandey, and thank you so much for joining in, sir. Hi, thank you, Amrish. Thanks for calling me into this podcast. I'm obliged. I'm indeed honored. All right, sir. So I'll just tell you the format of what we do and how we do. Yeah. So as you can see, the name of the podcast, it says 20 questions that help decode careers. So what we've done is, for example, the career that we have chosen today with you is the Merchant Navy, and specifically in the Merchant Navy, we are talking about the deck officer's role here. So these 20 questions are the questions that, of course, which I have researched from my end, but then these are the questions that we have, reached out to parents, we've reached out to schools, we've reached out to students, और उनके तरफ से जो हमको टॉप क्वेश्चंस मिले हैं उसको हम लोगों Okay. ने क्यूरेट किया है. So what I Hmm. understand is that these are the questions that most parents, most the kids, the students who want to get into merchant navy want to know. And so what I have done for simplicity and clarity, इनको मैंने ये जो 20 सवाल हैं, I have just divided them into 6 or 7 clean structures. Compartmentalize कर दिया है. 6 compartment 7 compartment मिला के I will be asking you these 20 odd questions. And yeah, so that's about it. And my message to the students, parents, and the schools who are listening, the gentleman that we have today on our show, I've had known him for multiple years now. And if there is anything and if there is anyone that can give you the best possible knowledge and input about merchant navy as a career, we have the person with us. So please listen to this discussion for an hour, and I'm sure you will be enriched towards the end of it. All right, sir, शुरू करें. Thank you, Amrish. Yeah. We can Chalo. start. Sir, let us begin with the simplest of questions. ये merchant navy, what is this career? या सो बेसिकली अमरीश, मर्चेंट नेवी से कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या इंडियन नेवी या उसका कुछ आर्म है या एक्सटेंशन है. सो ऐसा नहीं है. मर्चेंट नेवी सिंपली जो कंट्रीज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, जो कंट्रीज कार्गो एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, तो जो कार्गो का मूवमेंट होता है पानी के शिप्स पे होता है, बिकॉज कार्गो कैन बी इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स एंड लैक्स ऑफ टन्स. तो नेचुरली वो हवाई जहाज से भेजना फीजिबल नहीं है. सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्गो कैन गो वाया शिप्स. सो मर्चेंट नेवी लार्जली प्राइवेट सेक्टर है बेसिकली, ऑल्दो गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं इसमें, बट पूरे वर्ल्ड में लार्जली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसमें होती हैं. ये पानी के जहाज होते हैं, कई साइज के होते हैं, बहुत छोटे जहाज भी हैं, बहुत बड़े जाइगेंटिक शिप्स भी होते हैं. एंड अलग अलग टाइप के जहाज हैं. कुछ जहाज हैं जो ऑयल कैरी करते हैं, क्रूड Okay. ऑयल, पेट्रोल, डीजल. कुछ ड्राई कार्गो कैरी करते हैं, गेहूं, चावल, कोयला, अलग अलग तरह के. तो ये Right. मर्चेंट नेवी इज अबाउट अ करियर वेयर जो बंदा मर्चेंट नेवी में जाएगा वो ऐसे शिप्स के ऊपर जॉब करेगा जो शिप्स Okay. एक कंट्री से कार्गो उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में ले जाके डिस्चार्ज कर रहे हैं. I तो think ये that explains ये it very या clearly. दिस Okay. इज In व्हाट मर्चेंट simple नेवी terms, इज. this is what merchant navy is as a यस. career. यस. Excellent. यस. My first question, Captain Pandey, is about the role and the career context के हिसाब से हमने कुछ सवाल curate किए हैं. Considering that, of course, you are an expert with the complete merchant navy setup, but in this episode, I really wanted to focus on the role of a deck officer. So the या first question is, in simple terms, sir, एक डेक ऑफिसर का क्या रोल है, कहाँ से शुरू होता है ऑन बोर्ड अ शिप और कहाँ खत्म होता है? ओके. सो शिप के ऊपर बेसिकली यू कैन ब्रॉडली दो डिपार्टमेंट होते हैं. एक को बोलते हैं डेक साइड, एक को बोलते हैं इंजन साइड. सो डेक साइड में बेसिकली जो जाते हैं कैडेट रैंक से शुरू करते हैं. जो 12th का स्टूडेंट अगर उसको डेक ऑफिसर बनना है तो जनरली क्लास 12th के बाद में वो एंटर करेगा एंड शुरू में एज अ डेक कैडेट सेल करेगा. बाद में वो प्रमोशन होकर थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड फाइनली कैप्टन ऑफ द शिप बन जाता है. ओके. तो डेक ऑफिसर का रोल जो है प्राइमरली 3 एरिया में मैं डिवाइड कर सकता हूं. एक डेक ऑफिसर का रोल, एक है नेविगेशन फंक्शन. शिप को ले जाना है लेट्स से मुंबई टू रॉटरडैम. तो मुंबई टू रॉटरडैम शिप कैसे जाएगा, किस रूट से जाएगा, कई रास्ते हो सकते हैं, कौन से रूट से जाएगा, तो ये सारा डिसीजन एंड शिप को एक्चुअली ए टू बी सेफली पहुंचाना कम ओके. से कम टाइम में एज फार एज पॉसिबल छोटे वाले रूट ऑप्शन को चुना जाता है, बट सेफ होना चाहिए
एंड सेफली पहुंचे ए टू बी। तो शिप को ए टू बी सेफली, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट सेफली पहुंचाना, ये एक नेविगेशन का फंक्शन है। नेविगेशन एक स्किल होती है, क्योंकि पानी में रास्ते नहीं होते, सब पानी है चारों तरफ, तो कैसे जाना है वो भी एक स्किल है समझना। किनारे में तो लैंड पे रास्ता पूछ के चले गए, सड़क से आगे से राइट मोड़ जाओ, लेफ्ट मोड़, ऐसा तो वहां है नहीं। तो एक नेविगेशन एक फंक्शन हो गया, ये एक पार्ट हो गया डेक ऑफिसर का। दूसरा पार्ट है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कार्गो, ये शिप्स क्या करते हैं, कार्गो कैरी करते हैं। आपने एक पोर्ट में कार्गो लोड किया, कांडला में मान लो गुजरात में नमक लोड किया आपने, एंड वो नमक ले जाना है आपको चिटागोंग बांग्लादेश, वहां डिस्चार्ज करना है। तो लोडिंग पोर्ट में जहां कार्गो लोड हो रहा है उस समय भी डेक ऑफिसर वहां वॉच रखते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कार्गो सेफली लोड हो रहा है, प्रॉपरली लोड हो रहा है, सही जगह पर लोड हो रहा है। शिप में कई कंपार्टमेंट होते हैं, सही जगह पे लोड हो रहा है एंड सेफली हो रहा है। एंड बाद में ड्यूरिंग द वॉयज, जब कार्गो लेट्स से शिप का कांडला से चिटागोंग जा रहा है, तो ट्रांजिट में भी केयर ऑफ कार्गो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डेक ऑफिसर का, केयर ऑफ कार्गो। एंड जब पहुंच गया जहाज, मान लो चिटागोंग पहुंच गया, वहां उसी कार्गो को डिस्चार्ज करना है। तो अगेन डिस्चार्ज पोर्ट में वापस उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्गो सेफली डिस्चार्ज किया, सेफ वे में, एंड जो रिसीवर था कार्गो का उसको सेफली मिल गया। एंड इससे रिलेटेड पेपर वर्क सारा जो है वो सारा भी डेक ऑफिसर का काम हो गया। ये दूसरा फंक्शन हो गया। That's the second function. So first was navigation. Second we can broadly classify as cargo management, which includes सामान लेना, मैनेज करना, डिस्चार्ज करना, कार्गो हैंडलिंग, कार्गो केयर, कार्गो खराब नहीं होना चाहिए रास्ते में, राइट, एंड डिस्चार्ज ऑफ द कार्गो। यस, ये हो गया। एंड तीसरा एक फंक्शन होता है टेकिंग केयर ऑफ अदर सेफ्टी एस्पेक्ट्स, सेफ्टी मैनेजमेंट शिप का, केयर ऑफ पीपल ऑन बोर्ड। कैप्टन जो होता है, चीफ ऑफिसर, इनको बहुत पीपल का जनरल वेलफेयर, वेलबींग एंड केयर ऑफ पीपल, एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी। कहीं पर जैसे कई ऐसे एरियाज हैं सी में जहां पायरेसी है, तो सिक्योरिटी एलिमेंट्स वगैरह भी ध्यान देना। लीगल कंप्लायंसेस जो होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस, बहुत सारा आजकल इंटरनेशनल रेगुलेशन है, एंड अगर आप काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो यू कैन गेट इनटू लीगल कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ तक कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी अब पिछले 20 साल में बहुत बढ़ी है सीफेयरर्स की, अगर काम ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हो गए जो एक थर्ड कैटेगरी में हम रख सकते हैं। कैन वी क्लासिफाई द थर्ड कैटेगरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर? या सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर कार्गो हैंडलिंग में भी है, बट ब्रॉडली आप ये कहो नेविगेशन एक फंक्शन हो गया, कार्गो हैंडलिंग सेकंड फंक्शन हो गया। गवर्नमेंट उस थर्ड फंक्शन को बोलती है कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ शिप एंड केयर ऑफ पीपल ऑन बोर्ड। ये गवर्नमेंट उसको क्लासिफाई करती है। ऑलराइट, परफेक्ट, एक्सीलेंट। आई मीन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए अब तक इस सवाल के जवाब के पहले तक मर्चेंट नेवी probably had a lesser scope. All of a sudden deck officers का scope बढ़ गया है after listening to this particular answer. A lot of, because I have been in the education field for many years and I interact with students and parents. They have an idea of what merchant navy is, but they don't have a real idea of what merchant navy actually is, especially the deck officers role. सर एक अगला सवाल है मेरा, I want a quick answer for this. बड़ा सिंपल सा सवाल है, वैसे तो most of them would be knowing about it, but still, how is merchant navy different from, let's say, Indian navy? वो तो खैर understood है, but still a few words from your side, and most importantly, how is it different from these cruise ship jobs जो होते हैं? Yeah. सो इंडियन नेवी तो एज यू सेड वो अंडरस्टूड ही है। इंडियन नेवी जो है देश की नौसेना है, जो जिनका काम डिफेंडिंग द कंट्री है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, कंट्री को डिफेंड करना। तो वो एक अलग, वो गवर्नमेंट जॉब भी है एक तो नंबर 1, प्लस उसमें आप एक तरह से फौजी हैं, एंड वहाँ कार्गो कैरिंग वगैरह वाली बात नहीं है, एंड उनका काम है मिलिट्री प्रैक्टिस वगैरह। तो मर्चेंट नेवी एज आई टोल्ड यू कार्गो मूव करने का लार्जली प्राइवेट सेक्टर साइड है। क्रूज शिप्स जो होते हैं वहां पर बेसिकली पैसेंजर शिप्स जो हो गए, जहां पैसेंजर आप कैरी कर रहे हैं, एक तरह से वो भी कार्गो, इसको आप ह्यूमन कार्गो बोल सकते हैं यार, मूविंग ह्यूमन कार्गो, पैसेंजर शिप्स। तो वो भी एक इंडस्ट्री थोड़ी एक अलग टाइप, वो है इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से इट्स एन आर्म ऑफ मर्चेंट नेवी ओनली, उसको कहा जा सकता है मर्चेंट नेवी ही है वो भी। मतलब अगर कोई कैप्टन चाहे तो एक मर्चेंट नेवी का कैप्टन वो क्रूज शिप्स पे भी जा सकता है, बट वो इंडियन नेवी शिप्स पे नहीं जा सकता। बट क्रूज शिप में पॉसिबल है चेंज करना। तो एक तरह से मर्चेंट नेवी का ही एक सेगमेंट है, बट एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है।
जिसमें आप कार्गो नहीं ज्यादा मूव कर रहे हैं, मतलब ज्यादा क्या, लगभग नहीं के बराबर, थोड़ा बहुत बहुत छोटे अमाउंट में कार्गो हो सकता है, बट जनरली इट इज फोकस्ड ऑन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, एंड उसमें बहुत लग्जरी वगैरह, वो एक बहुत ही अलग बॉल गेम है, मतलब बिकॉज उसमें फिर बहुत सारी रेगुलेशन, इतने सारे पैसेंजर्स का केयर है, राइट। हॉस्पिटैलिटी है, उतने बहुत बड़े लेवल पे उसमें केटरिंग, कुकिंग, एक अलग ही टाइप का, मतलब वो बिल्कुल अलग। तो जो हम मर्चेंट नेवी की नॉर्मली बात करते हैं इंडिया में, तो जनरली लोग उसमें क्रूज को उतना दिमाग में रख के नहीं बोलते, कार्गो ऑल राइट, शिप्स को ही दिमाग आई में गेट रख के इट, बात आई गेट इट। करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इवन दो आपने इसको क्वेश्चन वन में लार्जली आंसर कर दिया है, but still the question reads that what kind of responsibilities, major responsibilities a deck officer handles at sea? हाँ, तो वही एक बार फिर से तीन ब्रॉड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं शिप का: नेविगेशन, शिप को ए टू बी, एक जगह से पहुंचाना। दूसरी जगह सेफली ले जाना, उसमें वॉच कीपिंग है, क्योंकि ट्रैफिक, कई जगह बहुत हैवी ट्रैफिक एरियाज में जाते हैं, तो वहां पर कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन नहीं होना चाहिए जहाज का, या पानी कहीं पे बहुत शैलो है और आपने ध्यान नहीं दिया, आप शैलो जगह चले गए तो जहाज सी बेड पे बैठ जाएगा, ग्राउंड में बैठ राइट। जाएगा, ये राइट। सभी डेंजर्स हैं। या कई बार यू गो इन टू एरिया जहां बहुत आइसबर्ग हो सकता है पानी में, हम्म। आपने टाइटैनिक हम्म। मूवी वगैरह देखी होगी, तो हम्म। ऐसे डेंजर से बचाना। या कई बार यू आर मूविंग इन अ सी एरिया जहां बहुत थिक फॉग है, जीरो विजिबिलिटी है, राइट। आपको जहाज ही आगे तक, पूरा जहाज की लेंथ पूरी नहीं दिख रही होती नहीं है, दिख रही है। और ऐसे में आप हैवी ट्रैफिक में आप जहाज चला रहे हैं रेडार वगैरह के भरोसे, तो एक नेविगेशन फंक्शन, बड़ा फंक्शन हो गया। जब शिप मूव करता है उस समय डेक राइट। ऑफिसर इस रोल में आ जाते हैं कि राइट। शिप को वॉच रखते हैं। एंड दूसरा हो गया कार्गो हैंडलिंग, ऑफ जैसे कोर्स बताया यू कि मेंशन्ड लोडिंग अबाउट इट। डिस्चार्जिंग कार्गो या। में। और तीसरा मैंने कहा उस फंक्शन का नाम होता है कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ शिप, इंक्लूडिंग केयर ऑफ पीपल ऑन बोर्ड एंड शिप सिक्योरिटी, ऐसा ओके। गवर्नमेंट ने उस फंक्शन 3 का नाम दिया हुआ है। ओके। उसमें बहुत सारे असॉर्टेड फंक्शन हैं तरह तरह के, लीगल कंप्लायंस भी उसमें आता है, गेट इट। एंड केयर ऑफ पीपल भी आता है, बहुत सारी चीजें आती Okay, so that completely, sir, clears the first segment for me. Let us move on to the next segment, which basically talks about the life at sea from the perspective of a deck officer. ठीक है। अब ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको लेके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा जो सवाल जो थे, इफ यू स्पीक टू एन एक्सपर्ट, मेक श्योर दैट दिस इज वन एस्पेक्ट दैट वी वांट टू बी वेरी श्योर ऑफ, कि हमारे बच्चे की जिंदगी कैसी होगी व्हेन द किड गोज एट सी. So the first question here, sir, is what does a typical day look like for a deck officer on board? क्या करता है वो डेक ऑफिसर, जो भी उसके रैंक्स हों, टिपिकली कोई भी एक ऑफिसर लेवल रैंक ले लेते हैं अपने, वो क्या करेगा हैं। सवेरे से लेके शाम तक या जितने भी समय वो काम करता है? तो ये तो हाईली जेनेरिक क्वेश्चन हो गया, बिकॉज इसमें बहुत तरह के रूटीन्स पॉसिबल हैं, बट फिर भी एक टिपिकल, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप पहले इसको ऐसे समझिए कि दो टाइप ऑफ डे हो सकते हैं। एक, अ डे एट सी व्हेन द शिप इज मूविंग, राइट। नेविगेशन जिस समय चल रही है और आप ले जा रहे हैं जहाज को, तो वो एक टाइप का शेड्यूल या रूटीन है, उस समय रूटीन थोड़ी अलग होती हैं। और जब शिप पोर्ट में होता है, कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग है, तो वो एक बहुत ही अलग तरह का रूटीन होता है। हम्म। तो अ डे एट सी जो है, उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो नॉर्मल रूटीन ये होता है कि जो डेक ऑफिसर्स हैं, नॉर्मली कैप्टन के अलावा तीन होते हैं: चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर। राइट। तो ये तीनों ऑफिसर रोटेशन में वॉच की ब्रिज में वॉच रखते हैं। ओके। 4 ऑन 8, 4 घंटे ड्यूटी, फिर 8 घंटे का रेस्ट, फिर 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे का रेस्ट। चीफ ओके। ऑफिसर सुबह 4 से 8 की वॉच रखता है और शाम को 4 से 8 की वॉच रखता है। ओके। सर सुबह 8 से 12 की वॉच रखता है, रात 8 से 12 की वॉच रखता है। ऑल राइट। सेकंड ऑफिसर दोपहर में 12 से 4 की वॉच रखता है और रात में 12 से 4 की वॉच रखता है। ओके। तो टिपिकली ये 8 8 घंटे की तो वॉचेज हो गई। ओके। इसके अलावा जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि जो आपके 24 घंटे में आपने 8 ही घंटा तो काम किया है इस वॉच से, हम्म। तो बाकी 16 घंटे आप फ्री थे, तो 16 घंटे में ऑफकोर्स 8 10 घंटे जो सोने के, 8 घंटा जो भी लगा ले, बट इट इज जनरली एक्सपेक्टेड कि 2 3 4 घंटे, 2 से 4 घंटे का सम एडिशनल वर्क आप करते हैं किस समय, जब वॉच नहीं रख रहे होते हैं। तो राइट। 8 घंटे की वॉच कीपिंग एक हो गई। उसके राइट। अलावा 2 से 4 घंटे का कुछ बहुत सारे काम होते हैं, आपको बताया मैंने, कई पेपर वर्क बहुत होता है, बहुत कुछ काम होते हैं, हम्म। मेंटेनेंस के काम होते हैं। तो एक आप ये मान के चलो कि आउट एट सी टिपिकली 10 से 12 घंटे का काम रोज का होता है। 24 घंटे में 10 से 12 घंटे का एक वर्क आवर्स हो गया, ऑल जिसमें राइट। 8 घंटे ब्रिज पे वॉच कीपिंग है और 2 से 4 घंटे का और कुछ दूसरा गेट काम, इट। मेंटेनेंस या पेपर अब सर एक वर्क। बात अब बताएं, हम्म आई मीन सॉरी टू जो जस्ट कट यू, मतलब कि बिकॉज दिस इज लीडिंग मी टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं लगा कि मैं साथ ही में पूछ लेता हूँ
कि जैसे आपने बोला कि 4 घंटा पीपल कीप अ वॉच एंड 8 घंटा इज ऑफ, एंड इन दैट 8 आवर्स दे डू सम पेपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू कवर इट अप। अब जैसे आपने बोला कि 3 रैंक्स है, देयर इज अ थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर, देयर इज ऑब्वियसली अ कैप्टन। ये डेक के अंदर दीज आर द 4 प्राइमरी रोल्स। हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी डज अ डेक ऑफिसर कैरी एट जूनियर लेवल एंड एट सीनियर लेवल्स? अगेन ये भी, इसको सब्सटैंशिएट करना, क्वांटिफाई करना इतना इजी नहीं है। बट अगर मैं एक आपको ये एक जनरल दो चार बातें इसमें समझने की है। एक तो नेचुरली लोअर रैंक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली कम है, और रैंक्स एज यू राइज इन रैंक्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बढ़ रही है। पहली बात तो ओके। यही हो गया। चीफ ऑफिसर कैप्टन जो सीनियर रैंक्स मानी जाती हैं, ये थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर को जूनियर रैंक बोला जाता है, राइट। एंड चीफ ऑफिसर कैप्टन को सीनियर रैंक बोला जाता है। ओके। तो सीनियर रैंक्स में तो जो प्रेशर्स हैं ऑफ द जॉब वो बहुत, दे आर एक्सट्रीमली हाई। मतलब तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रैंक से बढ़ती है। कैप्टन तो एक तरह से हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन अ शिप है, उससे ऊपर कोई नहीं होता शिप में। तो हम्म। कैप्टन के लिए तो कहीं कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा समझ लो कि मान ली गई, तो कप्तान ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। राइट। तो एक तो ये हो गया। एक जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, यू सी, अगर आप एक एवरेज जहाज का एक अगर आज ऑर्डर दो, एक जहाज खरीदो, कोई खरीदे, तो कम से कम $50 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक की कॉस्ट हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं एक एवरेज रेंज बता रहा हूं, बिटवीन $50 मिलियन टू $100 मिलियन एक जहाज की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ अ शिप। ओके। कॉस्ट ऑफ अ शिप। एंड देन लगभग उतने ही वैल्यू का आप मान लो वो कार्गो कैरी कर रहा है। $100 मिलियन का जहाज है और $100 मिलियन का कार्गो भी कैरी कर रहा है। कार्गो कैरी कर यानी रहा है। यानी कि एक तरह से आपका एक शिप जो मूव कर रहा है सी में, इट इज एन एसेट वर्थ 200 मिलियन डॉलर, दो डॉलर्स। सौ मिलियन डॉलर का एक एसेट है। और ये कितने लोग संभाल रहे हैं? 20 से 25 लोग। एंड वो 20 से 25 लोग में भी लगभग वो 14-15 लोग तो रेटिंग होते हैं, जो वर्कर्स जिनको हम बोल सकते हैं लोअर लेवल में। और 10 के करीब ऑफिसर हैं, जिसमें से 5 मान लो आप, 4 से 5 डेक ऑफिसर हैं, 4 से 5 इंजन, मतलब 10 क्या 8-9 ही होते हैं, 10 ओके। 5 से भी कम। 4 डेक ऑफिसर, 4 इंजन ऑफिसर और हम्म। एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। तो एक 10 आदमी पर ही समझ लो इस पूरे $200 मिलियन एसेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयर इसका या हर तरह से इसकी मेंटेनेंस, ये 10 आदमी के ऊपर है। राइट। अब इसको आप कंपेयर करो, लेट्स से विद एक किनारे में कोई फैक्ट्री लगाए कोई बिजनेसमैन, मे बी इन अ लैंड ऑफ 25 से 50 एकड़ जमीन में कोई खरीद हम्म। के एक स्मॉल सिटी में, और एक फैक्ट्री लगाए और उसमें 1000-2000 आदमी को एम्प्लॉय करे, सही बात तो है। ये तब जाकर ये $200 मिलियन में इतना काम हो सकता है। और एक बीस यहाँ पे पच्चीस एकड़ यहाँ जमीन। पे उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी 8-9 लोग संभाल रहे हैं। और हाँ, तो जो एक फैक्ट्री 2000 आदमी चला रहे हैं, मे बी $200 मिलियन का एसेट, एक में एक फैक्ट्री चल रही है, 2000 आदमी का परिवार पल रहा है। हम्म। यहां पर उतना ही बड़ा एसेट एक तरह से 25 आदमी, या उसमें भी जो अगर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 10 ऑफिसर्स, 5 डेक ऑफिसर, 5 तो इंजन ऑफिसर। मतलब आई तो गेट माई इससे सेंस आंसर मिलता है कि भले कि जूनियर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती बहुत है, बट द जबरदस्त है। बक स्टॉप्स एट द कैप्टन ऑफ कोर्स। Yeah, buck stops on senior ranks more, and definitely captain though is always, the easiest, soft target, easiest target. Okay, moving on, sir. What are the biggest challenges of life, at sea, जो जिसके बारे में स्टूडेंट एंटिसिपेट नहीं करते? बिकॉज आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ पॉइंट दैट everyone knows that merchant navy is financially a rewarding career, and this is a common perception जो probably लोगों को पुल भी करता है इस करियर के टुवर्ड्स। बट देर आर सर्ट, आई एम श्योर, क्योंकि जैसे आपने बोला $200 मिलियन का एक असेट मूविंग ऑन वाटर विद 8-9 पीपल हैंडलिंग द एंटायर ऑपरेशंस एंड दिस थिंग, तो आई एम श्योर देयर वुड बी चैलेंजेस। सबसे बड़े चैलेंज बता दो आप मुझे, 2-3, जो स्टूडेंट्स नहीं एंटिसिपेट करते कि ये भी चैलेंज हो सकता है। देखो, इसमें मेरा ये बड़ा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिकॉज सब स्टूडेंट्स के ना, हर इंसान अलग है, सबका एक कैरेक्टर नेचर बहुत अलग अलग है। किसी को लाइक, अब देयर कैन बी पीपल स्टूडेंट्स हु आर वेरी एक्सट्रीमली इमोशनल इन नेचर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है मम्मी से, पापा से, या किसी का और थोड़े हायर रैंक में जो चले गए, शादी हो गई, बीवी बच्चे से। तो अगर कोई बहुत एक्सट्रीमली अटैच्ड है, उसके लिए शायद वो अभी उसे लग रहा है कि चलेगा, लेकिन वो व्हेन ही इज आउट एट सी, और मान लो पीछे मिडिल ऑफ द ओशन में है, पीछे एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या कोई मरी जाए, जस्ट टू शेयर विद यू,
आई लॉस्ट माई रियल यंगर ब्रदर, 5 साल छोटा भाई मेरा, ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, यू आर अवेयर ऑफ इट, Yeah. एंड आई कुड नॉट कम होम, तो मैं आ ही नहीं पाया दैट टाइम, यू नो हाउ मच माई फैमिली नीडेड मी. Right. मेरे लिए, फॉर मी, बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द करियर इज कि इसमें, you know, when you talk of a career, you're talking of maybe 2-3 decades of time. Right. 2-3 decades of time में लाइफ में ऐसा हो सकता है कभी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पड़ जाए व्हेन यू आर बैडली नीडेड एट होम एंड यू कांट रीच होम. ये मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जो बच्चे शायद एंटिसिपेट नहीं करते. एंड आज की डेट में विद फैमिलीज बिकमिंग स्मॉलर एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, यू नो, नॉर्मली लॉट ऑफ हमारे कैडेट्स एकेडमी में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो अकेले बच्चे हैं पेरेंट्स के, एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं. तो अगर एक सिंगल चाइल्ड है ऑफ एन एजिंग पेरेंट, तो वो तो पेरेंट को, एजिंग पेरेंट है, आए दिन कोई बीमारी है, कुछ है, वो बच्चा बाहर स्ट्रेस में ही बना रहेगा. So this for you is the single largest challenge. For me, this is the biggest challenge. बाकी क्या है, देखो, हार्ड वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब लोग कर लेते हैं अगर माइंड में पीस हो. अगर एक थोड़ा सा एक नेचर ऐसा हो कि ठीक है, अगर घर में कुछ है भी तो ठीक है, देगा, हैंडल कर लेंगे, पड़ोसी से बात करेंगे, इस दोस्त से बात करेंगे, कोई रिलेटिव है. If they can kind of they can learn to be at peace with these kind of situations at home, if they can manage it remotely, अगर ये कैरेक्टर में है, नेचर में स्ट्रेंथ है, तो फिर तो ठीक है. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो मैं तो कहूंगा कि फिर ये मर्चेंट नेवी तो मत ज्वाइन करें. बाकी तो बहुत सारे चैलेंजेस है, हार्ड वर्क है, बहुत, अब इतने कम लोगों में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेचुरली एट टाइम्स इट इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क. कई बार लॉस ऑफ स्लीप होती है. तो अगर कोई सोने का बड़ा शौकीन है और उसे लगता है मैं नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो भैया मत जाओ, तो तुम मत जाओ फिर, क्योंकि ये स्पेशली पोर्ट्स में, आउट एट सी ये प्रॉब्लम नहीं आता लॉस ऑफ स्लीप का, लेकिन पोर्ट एक्टिविटीज में कई बार ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे में, अरे ऐसा भी हुआ है कि मैं 1-1.5 दिन तक, मतलब 36 घंटे तक अपने कैबिन में जा ही नहीं पाया. इन सीनियर रैंक पर ऐसा हुआ है. तो ये सब चीजें कभी कभी होती हैं, नॉट एवरी डे थिंग, बट यस, लॉस ऑफ स्लीप वगैरह के फिनोमिना हैं, ये भी चैलेंजेस हैं. बट मेरे लिए बड़ा चैलेंज वही है जो इमोशनल साइड है ना, इमोशनल साइड ऑफ अ पर्सन. हाँ, वो बड़ा चैलेंज है. मूविंग ऑन टू माय थर्ड सेगमेंट सर, एक चीज और ऐड कर दूं, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर थिंग. आजकल आउट एट सी लीगल कंप्लायंस विद रूल्स, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, यू नो, एनफोर्सिंग रेगुलेशन कंप्लायंस, ये बहुत बढ़ गया है इंटरनेशनली. इतना बढ़ गया है कि अगर आपसे गलती से भी गलती हो गई तो उसका कई बार सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. यहाँ तक कि दिस इज डेफिनेटली नॉट 25 years चैलेंज दैट पीपल एंटिसिपेट, हाँ, जो स्टूडेंट समझ पाएंगे. तो इसमें मैंने देखा है कि पिछले 25 साल में देयर हैव बीन लॉट ऑफ केसेस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सीफेयरर्स इन फॉरेन कंट्रीज. ये आपसे एक जान के नहीं गलती से गलती हुई, लेकिन कुछ उसकी वजह से कुछ इंसिडेंट हो गया तो जेल में डाल दिया उठा के. जैसे अभी यूएस के अंदर एक शिप वो ब्रिज को लग गई थी, यस यस. ओके ना, बट इट मे नॉट बी कॉमन, but that is definitely a big challenge that people don't anticipate the legal. Don't anticipate. And क्या है अमरीश, जो यंगर जनरेशन है ना, दे आर अप टू क्लास 12th का जो स्टूडेंट है, वो जनरली 12th के ही बच्चे जाते हैं. राइट. अब क्लास 12th का जो एक लेवल है स्टूडेंट होता है ना, वो हैप्पी गो लकी टाइप होता है, बहुत कैजुअल होता है. राइट. दे आर जनरली कैजुअल इन देयर माइंड, एंड ये कैजुअल अप्रोच दरिया में एक्चुअली नहीं चलेगी. दे हैव टू वेरी क्विकली ग्रो इनटू अ मोर मैच्योर माइंड, मोर मैच्योर इंडिविजुअल. चलता है दरिया में, नहीं चलता है. वेल सेड. You have to be, yeah. All right, moving on to my third segment, Captain Pandey. It is about eligibility, entry, and fitness. So I don't want you to get into absolute details. Probably we can share with the students and parents certain websites where they can get it, but still at a superficial level, not at a superficial level, just scratching the surface level, थोड़ा सा और अंदर जाके क्या academic background required होता है or want to enter into deck officer? So basically deck officer बनने के लिए class 12th English and PCM के साथ होना चाहिए. Okay. PCM मैंडेटरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, व्हाट आई मीन, ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं. इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है? इंग्लिश भी मैंडेटरी, इंग्लिश तो रहता ही है, मतलब यस, इंग्लिश मैंडेटरी 12th में नहीं, अगर 10th में भी इंग्लिश है तो, एंड वैसे आजकल तो कहाँ इंग्लिश नहीं होती, बट यस, मैंडेटरी PCM मैंडेटरी है फॉर क्लास 12. इंग्लिश 10th या 12th में किसी भी एक लेवल पर अगर आपके इंग्लिश में 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो दे एक्सेप्ट इट. 10th में या 12th में. Got it. एंड 12th के PCM का जो स्कोर है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 60% है. 60%, 60.
तो अगर तो क्लास 12 पीसीएम, पीसीएम का टोटल जो दैट्स है एवरेज 60%, 60% होना चाहिए, होना चाहिए। इंग्लिश 50%। एंड ऑलराइट, ये जनरली अगर ये है तो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। फेयर इनफ। और इसके अलावा वैसे जाने वाले कई बार लोग मैंने देखा इंजीनियरिंग बीटेक करके भी हमारे यहाँ एज अ डेक कैडेट आ जाते हैं, कम So केसेस that है लेकिन। brings me to my next question. Can students join only after class 12, or is graduation a नहीं, better route? ग्रेजुएट नहीं, बेटर रूट नहीं है, बेटर रूट Okay, क्लास 12 ही है। okay. बट ग्रेजुएशन वाले भी अगर साइंस स्ट्रीम है, अगेन साइंस Hmm. स्ट्रीम होना चाहिए, Hmm. आर्ट या कॉमर्स वाले नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। यू शुड बी अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, Okay. Because है I ना? know तो my, Sunil, my elder brother, he joined Merchant Navy after completing his BSc Physics from Mumbai University. या So he सो joined as a cadet, which he could यस have यस otherwise done after class 12. यस, क्लास 12 के बाद बेटर है, क्योंकि वो Better है, बीएससी का ना लाइफ में उतना कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है जो एक नॉर्मल बीएससी है। और right? आपको जाना ही है तो 12th के बाद पहले आप ही कोर्स चले जाओ। करिए, एंड क्यों? इसमें भी आपको बीएससी मिल जाएगी, यू विल गेट बीएससी डिग्री हियर You will आल्सो। get a BSc degree in इवेंचुअली यू विल nautical. गेट अ बीएससी डिग्री। तो जब बीएससी मिलने ही वाली है तो एक Right. बीएससी घर पे करके क्यों जाए, टाइम बचाओ ना, फिर 12th के बाद ही बिल्कुल ठीक चलेगा, है। आपका टाइम बचेगा, यू विल स्टार्ट सर, ये अर्लियर। मेडिकल फिटनेस और आईसाइट का क्या स्टैंडर्ड्स है? फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें आईसाइट, इंक्लूडिंग आईसाइट। या सो आईसाइट का रूल ये है गवर्नमेंट का कि एट द एंट्री लेवल मतलब जब आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे हम्म। एट दैट टाइम आईसाइट शुड बी 6/6 विदाउट एड, यानी विदाउट ओके। चश्मा या विदाउट कॉन्टैक्ट, राइट। कॉन्टैक्ट लेंस, चश्मा नहीं, विदाउट एनी एड द विजन शुड बी 6/6। तो एक 6/6 रिक्वायरमेंट। का क्या मतलब होता है सर? अब यार परफेक्ट आईसाइट? बस हाँ, वेरी गुड आई साइड, अब मैं वेरी उसको गुड आईसाइट, कुछ मेथमेटिकली पैरामीटर्स होंगे। 6/6 विदाउट मतलब एड चश्मा मतलब नहीं कि होना चाहिए, चश्मा नहीं होना विदाउट चाहिए बंदे को। चश्मे के बिना आपको पास का दूर का सब अच्छे से दिख रहा है। और आई मीन वंडरफुल। एज अ लेमैन इसका ही मतलब समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं ठीक है। मेडिकली प्रोफिशिएंट नहीं हूँ। हम्म। तो यस, बट विदाउट चश्मा आप दूर का भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, पास का भी पढ़ रहे हैं, चश्मा नहीं है आपको। ठीक जनरली है। दिस इज व्हाट इट मींस। तो ठीक ये है। तो हो गया हाँ, आईसाइट। ये एक हो गया। नहीं, आई साइड में एक और इंपॉर्टेंट बात है, है। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ओके। तो मेरा एक भांजा है, वो हर तरह से एलिजिबल था, बट वो कलर ब्लाइंड निकला टेस्ट में। तो ओह। अगर कलर ब्लाइंड है तो वो दरिया में नहीं जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हम कलर ब्लाइंड हैं। तो अगर मर्चेंट नेवी आ सोच रहे हैं तो एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कोई भी डॉक्टर करके दे देगा आपको। और अच्छा, दिस कलर इज, आई ब्लाइंड डोंट अगर थिंक आप, दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल नो हाँ, तो अबाउट कलर मर्चेंट नेवी। ब्लाइंडनेस टेस्ट करा ले, कई बार लोगों को नहीं पता होता कि हम कलर ब्लाइंड है। तो वो ओके। टेस्ट करने से ही बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, कागज में कई रंग भरे रहते हैं अलग अलग, उन्हीं रंगों में हम्म। नंबर छिपा रहता है, तो अगर ठीक है। कलर ब्लाइंड हो नंबर ढूंढ नहीं पाया, पता नहीं 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 जुड़ पाएगा आदमी, ठीक इस है। तरह के। तो ये कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, दूसरा एस्पेक्ट है विजन का, ये दो एस्पेक्ट है। लेकिन करियर में आगे जाकर अगर चश्मा आ गया तो उसमें इतना स्ट्रिंजेंट वो नहीं है, उसमें वो अलाउ करते हैं चश्मा बाद में, लेकिन एंट्री एंट्री लेवल लेवल पे के तो टाइम सब पे ये चाहिए। और फिजिकल एक और बात, स्टैंडर्ड्स। नहीं, एक और बात, अगर चश्मा है भी, ये बता दूं क्योंकि आपके ऑडियंस को इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चश्मा है अगर आजकल तो अगर आप देखो तो क्लास 12 में हर स्टूडेंट को चश्मा है, है ऐसा ही, टाइम आ सही बात गया है। है बिना राइट। चश्मे के बच्चे कम दिखते हैं। हमारे टाइम में चश्मे वाला 40 की क्लास में एक या दो होता था, अब अब 40 20 है क्लास में एक या दो बिना चश्मे के, बिना ना चश्मे कि के, बस सही चश्मे बात वाले। है। तो इसमें जानने की बात यह है कि गवर्नमेंट अलाउज अ करेक्शन बाय दैट लेसिक सर्जरी। अगर ओके। आपने करेक्शन कर लिया है, चाहे ऑपरेशन करा के 6/6 कर लिया है तो बिफोर चलेगा। ज्वाइनिंग, हाँ, बिफोर एट द ज्वाइनिंग। टाइम, तो दे एक्सेप्ट दैट। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड। हो गया आई साइड का। राइट। बाकी मेडिकल जो है, जनरली क्रिटिकल इलनेसेस कोई नहीं होनी चाहिए, बट मेडिकल में मैं इसमें इतना ही बोलूंगा हम्म। कि बेसिकली गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेडिकल क्राइटेरिया होता है, विच इज एक्चुअली गवर्न बाय इंटरनेशनल रूल्स। ओके। आईएलओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। उनके स्टैंडर्ड्स हैं मेडिकल फिटनेस के, जो सारी कंट्री फॉलो करती हैं। तो इसमें ये मेडिकल फिटनेस खाली एंट्री लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं है अमरीश, ये हर जहाज में जाने के पहले मेडिकल करना पड़ता है, आपको शायद पता ही अच्छा, होगा। इज इट? हाँ, हर जहाज पे जाने के पहले आपका एक मेडिकल होगा, होगा ही इन होगा। अकॉर्डेंस, हाँ, होगा ही होगा, इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स। ओके। एंड वो मेडिकल आप किसी भी XYZ डॉक्टर से नहीं करा सकते, वो आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर ही करके देगा। करके देगा। ठीक है। तो क्योंकि उसको पता है कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड क्या है, और उसी हिसाब से मेडिकल होते हैं, अगर आप फिट पाएंगे तो आप जहाज में जाते हैं। ये एक, पूरी लाइफ के लिए रूल गेट है। इट गेट इट, एक सर इसमें एक बड़ा वैसा सवाल है, एंड आई वांट यू टू बी एज ब्लंट एंड एज स्ट्रेट एज पॉसिबल विद दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, हु शुड नॉट चूज अ डेक ऑफिसर करियर इवन इफ द सैलरी लुक्स अट्रैक्टिव? पढ़ना ही नहीं है, इंडस्ट्री में ही नहीं जाना.
तो एक तो आंसर पीछे थोड़ा एक आया ही था, मैंने कहा था कि अगर इफ यू आर अ वेरी एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन, इमोशनली आप अगर आप बता बहुत चुके हैं इस ज्यादा, बारे में। तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। हम्म। ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशनल सभी होते हैं, लेकिन अगर एक्सट्रीमली इमोशनल कोई है उस तो फिर वो नहीं जाना चाहिए। नंबर टू, इफ यू आर अ पर्सन जिसको, जैसे अगेन ये भी पहले बोला था, इफ यू आर अ सिंगल चाइल्ड ऑफ एन एजिंग पेरेंट अवॉइड एंड इट। थिंक यू आर वेरी इमोशनल, अब टची अबाउट योर पेरेंट, तो फिर वो भी अवॉइड ही करे। या तो यू आइदर यू एक्सेप्ट कि ठीक है, मेरे एब्सेंस में पेरेंट को कुछ होगा तो मैं चाचा को बोल दूंगा, दोस्त को बोल दूंगा, प्रोसेस मैनेज कर लूंगा, फिर तो ठीक है। हम्म। अदरवाइज आई थिंक वन दैट काइंड ऑफ पर्सन शुड अवॉइड। नंबर थ्री, आई वुड से अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट है जो मे बी मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स में कवर्ड तो नहीं है, लेकिन यू नीड अ रेगुलर मेडिकल केयर, अगर इस तरह का कुछ है, सो तो वन शुड अवॉइड। तो वो भी उसको मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शिप्स में ना डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो यू नो दैट देयर आर नो डॉक्टर्स एट राइट। ऑन द शिप। तो वैसे तो आई डोंट नो इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ सम एलिमेंट लाइक दैट, बट अगर किसी को पता है कि मेरे को एक कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो बेटर है डॉक्टर से चेक कर ले कि ये चलेगा कि नहीं। ठीक है। अगर कोई रेगुलर मेडिकल केयर किसी को चाहिए तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, आई फील दैट इज इंपॉर्टेंट। और कोई बहुत ही आलसी हो जिसको बड़ी इजी लाइफ जीनी है, उसको अपने सोने पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो उसने भी अवॉइड करना उसको चाहिए। भी अवॉइड कर लेना चाहिए। दीज ठीक पीपल शुड है। अवॉइड दिस। ठीक है, एक्सीलेंट। सो वीव कंप्लीटेड, कैप्टन पांडे, वीव कंप्लीटेड 10 very pertinent questions to this industry, and I would now like to move to the fourth segment which talks about courses, exams and institutes। एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपने पहले बताया था कि आदमी एज ए कैडेट इवेंचुअली एंटर करता है 12वीं के बाद में। तो ये व्हाट आर द मेन डेक साइड प्री सी कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, और एक बार प्री सी का भी मतलब समझा दीजिएगा। प्री सी मतलब फॉर पीपल अंडरस्टैंडिंग इट्स PRE-SEA, मतलब दरिया में जाने के पहले आई थिंक इट्स प्री सी। तो आई यस, वांट टू नो द मेन डेक साइड प्री सी कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, और थोड़ा प्री सी का मतलब भी आप बता दीजिए। या सो मर्चेंट नेवी में अगर किसी को एंटर करना है तो उसको अगर डेक ऑफिसर, मैं सिर्फ डेक ऑफिसर के पोजीशन से बता रहा यस। हूँ यस। क्योंकि इंजन साइड की भी एंट्री है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक डेक ऑफिसर अगर किसी को बनना है, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, बेसिकली आगे जाके कप्तान बनना है, इन सिंपल हम्म। वर्ड्स की उसको हम्म। कैप्टन बनना है आगे जाके, हम्म। तो वो डेक ऑफिसर एंट्री कहलाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए दो तरह के प्रीसी कोर्स, मेनली ये दो कोर्स हैं इंडिया में। एक है एक कोर्स का नाम है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये एक ओके। साल का कोर्स है। इट इज अ 1 ईयर कोर्स, एंड उसके बाद उसको जहाज में 18 महीने सेलिंग करनी पड़ती है एज अ कैडेट। उसको भी ट्रेनिंग माना जाता है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग बोलते हैं ऑन उसको, बोर्ड शिप। ट्रेनिंग हो गया। हाँ, तो 12 महीने कॉलेज में, फिर बाद में 18 महीने जहाज में। ओके। और उसके बाद फिर वो 18 महीने के बाद वो उतर के गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन वगैरह के, वो देगा तो उसको अपना लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद ही गोज ऑन बोर्ड एज अ सर्टिफाइड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर रैंक में जा सकता है। ऑल तो राइट। सो एक कोर्स हो गया वन DNS, ईयर डिप्लोमा इन नॉटिकल DNS साइंस, प्लस 1 ईयर 18 months of सेलिंग। as हाँ, sailing as a हाँ, cadet, and then हाँ, clearing certain examinations, एग्जाम्स getting एंड देन ही license, बिकम्स joining as third officer। थर्ड ऑफिसर। ये एक स्ट्रीम हो, एक टाइप का चैनल ठीक हो है, गया। ठीक है। दूसरा, कुछ कोर्सेज हैं इंडिया में जो BSc नॉटिकल साइंस कोर्स है, जो 3 साल के कोर्स होते हैं, मतलब कॉलेज में ही 3 साल पढ़ेगा। ओके। जैसे कोई भी BSc 3 साल की होती है राइट। कॉलेजेस में, तो राइट। BSc नॉटिकल साइंस भी एक डिग्री है जिसका 3 साल की पढ़ाई कॉलेज में ही हो जाती है। ओके। इनफैक्ट आई हैड डन 3 ईयर BSc डिग्री नॉटिकल साइंस इन ओके। मुंबई बिफोर आई वेंट आउट टू सी। तो राइट। लेकिन आजकल ज्यादातर कंपनीज वो DNS ही प्रेफर करती है, बट BSc वाले भी, मतलब वो भी एक अच्छा कोर्स है, So वहां the से भी जॉब्स मिलती है। BSc Nautical Science candidates study on shore 3 years graduate थ्री program इयर्स and थ्री simply, इयर्स and then they उस वो भी अपना लाइसेंस फिर वो एग्जाम। शिप में जाते हैं, उनको 12 महीने एज अ कैडेट करना पड़ता है। 12 months एज कैडेट और हो बारह गया, महीने तो ये उसके रूट बाद थोड़ा दे सा कम लंबा हो गया डाउन। सर। हाँ, ओवरऑल थोड़ा शायद थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, हाँ, वो ज्यादा नहीं, 12+18 थोड़ा हो लंबा गया और ये थ्री पड़ेगा। हाँ, प्लस ये थ्री ट्वेल्व हो ईयर गया। प्लस, हाँ ओके। बिल्कुल, थोड़ा फर्क दोनों का पड़ेगा। वैल्यू और स्ट्रक्चर सब कुछ सेम। आगे जाके बिल्कुल सेम वैल्यू है, बिकॉज ये डिप्लोमा वाला जो है, बाद में हम्म। जब वो 18 महीने करके उतरेगा एंड गवर्नमेंट एग्जाम देगा, तो सारे हम्म। एग्जाम पास होने के बाद इसको भी BSc नॉटिकल साइंस डिग्री मिल जाएगी ओके, इज फ्रॉम इट। मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। हाँ, गेट इट। या इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, दे विल प्रोवाइड यू BSc नॉटिकल साइंस डिग्री। जो ओके। DNS करके जा रहा है हम्म। उसको भी लॉन्ग टर्म में डिग्री मिल जाता है।
तो ओके, बीएससी नॉटिकल साइंस पहले से गेट 3 इट। साल का कोर्स करके जाने वाला रूट मैं एटलीस्ट पर्सनली सजेस्ट नहीं करता। एंड क्योंकि मैं एंग्लो में काम कर रहा हूँ, इसके पहले मैं फ्लीट में था, दीज आर टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज इन टुडेज टाइम्स। तो मुझे दोनों कंपनी की फिलॉसफी पता है कि बोथ दीज कंपनीज विच टुगेदर, अगर देखो ये दोनों मिलाकर लार्ज मेजोरिटी ऑफ इंडियन सीफेरर यही दोनों कंपनी के बीच में एम्प्लॉयड है। ओके, तो ये दोनों कंपनी की फिलॉसफी में एक डीएनएस के लिए प्रेफरेंस है, बीएससी के लिए कम मतलब लेते हैं बीएससी कैडेट्स, बट जनरली दे प्रेफर टू हैव डीएनएस कैडेट्स। और उसका खाली एक रीजन है कि शिप में उनको एक्स्ट्रा एज अ कैडेट एक्स्ट्रा सेल करने को और एक्स्ट्रा लर्न करने को मिलता वो है, मिल जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उन प्रैक्टिकल लोगों को। एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो मैं तो किसी को भी कहूंगा डीएनएस करके वो वाला रूट पकड़ो। ये ठीक दो है। मेन प्रीसी कोर्सेज। आपने कहा प्रीसी होता क्या है वो बता देता हूं। बेसिकली कोई बंदा जो अभी शिप में गया ही नहीं कभी और उसको हम्म, डेक ऑफिसर बनना है या उसको हम्म, इंजीनियर बनना है, तो हम्म। उसको सी में जाने के पहले एक मैंडेटरी प्रीसी कोर्स करना पड़ता है। ये हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 3 मंथ्स का, मिनिमम 3 मंथ्स का रहेगा। थ्री ओके। मंथ वाले भी कुछ कोर्सेज है, उनको भी प्रीसी कोर्स बोलते हैं, हम्म, बट वो रेकमेंडेड नहीं है। हम्म। तो 1 ईयर या 3 ईयर बीएससी, ये दो गेट इट, रेकमेंडेड है। गेट इट। इनको प्रीसी कोर्स बोलते हैं। अब इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है? पोस्ट सी कोर्सेज। हम्म, पोस्ट सी कोर्स उनको बोलते हैं जब एक बंदा थर्ड ऑफिसर बन गया, मतलब सेकंड ऑफिसर लाइसेंस मिल गया, अब वो शिप में गया, ही सेलिंग एज ऑफिसर। तो ऐसे ऑफिसर बनने के बाद भी इस इंडस्ट्री में एक ऐसी ट्रेनिंग रेजीम है कि ऑफिसर बनने के बाद भी प्रमोशंस होते रहेंगे। कैप्टन बनने के बाद भी आपको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो वो दिस कंटिन्यूअस लर्निंग, प्री सी पूरे कोर्सेस, पोस्ट सी आपको, कोर्सेस, तो ऑल थ्रू आउट। पोस्ट कोर्स उनको बोलते हैं जो ऑलरेडी लाइसेंस्ड गेट ऑफिसर्स इट, हैं, वो सेल कर रहे हो, बट उन्हें भी बीच बीच में आगे कॉलेज में कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। वो ऑडिट। पोस्ट सी कोर्स कहलाते हैं। ओके। अगला सवाल कैप्टन पांडे ये आ रहा था, इस IMU CET, सो हाउ इंपॉर्टेंट इज IMU CET फॉर एस्पायरिंग डेक ऑफिसर्स? और ये IMU CET एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या होता है ये? आईएमयू तो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज अ राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेस्ड इन चेन्नई। ओके। चेन्नई ऑपरेट करती है। और सीईटी इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। टेस्ट। तो हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी है, इसके बिना कोई रूट ही नहीं है। तो किसी भी 12th स्टूडेंट को, या इवन फॉर दैट मैटर बीएससी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट को अगर डेक ऑफिसर बनना है, हम्म, या फॉर दैट मैटर इंजीनियर ऑफिसर भी बनना है, तो हम्म। उसको आईएमयू सीईटी तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो जो देना ही होगा। वो देना पड़ेगा। उसमें क्वालिफाई, जैसे आईआईटी जेई मेन समझ होता गया, है, जेई समझ एडवांस गया। होता है, नीट होता है, ऐसे मर्चेंट नेवी के लिए ये कॉमन एक कंपटीशन है। ये इट्स अ ओके। कॉम्पिटिटिव टेस्ट, इसको और देना उसके पड़ेगा। बाद भले वो DNS वाले रूट में जाए या 3 साल के या रूट में बीएससी, जाए, हाँ, उसकी वो ही चॉइस कैन है वो। वो काउंसलिंग सेशंस के टाइम में ही कैन डिसाइड। जब काउंसलिंग होती है, आपकी राइट। रैंक लिस्ट आ गई और हम्म, आपकी रैंक आ गई, दैट टाइम एक काउंसलिंग चलती है, ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसे आईआईटी नीट में भी हम्म। चलती है। गेट उसमें इट। यू चूज योर विच कोर्स एंड योर प्रिफर्ड कॉलेज, ये इस ओके। तरह से। गेट इट, गेट इट। ना वो अब सर मैंडेट। जब आती है, तो चलिए, द DNS 1+18 एंड 3+12 इज एब्सोल्युटली क्लियर, IMU CT इज एब्सोल्युटली क्लियर। व्हाट मिस्टेक्स डू पेरेंट्स, ये सवाल हमने ऐड किया था हमारे एंड से, व्हाट मिस्टेक्स डू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक व्हाइल चूजिंग अ मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन? क्योंकि करियर की बात है ना, तो या पेरेंट्स आर या रियली कॉशियस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। नहीं, क्या ये बहुत गलती? इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, बिकॉज इसमें खास बात ये केयर लेने की है कि इंडिया में देयर हैज बीन अ हिस्ट्री इन इंडिया ऑफ लॉट ऑफ बोगस इंस्टीट्यूट्स आल्सो ऑपरेटिंग। आई डोंट नो हाउ दे ऑपरेट, बट बहुत ऐसा पास्ट में हुआ है और आज भी चल रहे होंगे शायद। तो बहुत सारे बोगस इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जो एडवर्टाइज भी करते हैं, कैडेट्स भी, पेरेंट्स ट्रैप में भी आ जाते हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, बाद में उनका कुछ नहीं होता। राइट। तो एनीवे, सो इसमें पेरेंट्स को एक मिस्टेक को क्या करना चाहिए, डीजी शिपिंग की एक वेबसाइट है, डायरेक्टर जनरल, गूगल कर लें, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग गूगल पे डालें तो उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी। तो DG डीजी शिपिंग, शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। या डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को गूगल करें, उसकी वेबसाइट सर्च में सबसे ऊपर उन्हीं की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। उस वेबसाइट पर जाकर वहां पर दो काम करें। एक तो वहां पर उस वेबसाइट पर देयर इज अ लिंक गिवन टू लॉट ऑफ अवेयरनेस वीडियोस फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ओके, एस्पायरिंग। तो अवेयरनेस वीडियोस उन्होंने कई सारे बना रखे, उनका लिंक है उस पर, ओके, तो दैट्स एनीबॉडी वंडरफुल। एस्पायरिंग शुड वॉच दोस। अगर आप, मैंने इनफैक्ट आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, आप चाहो तो बाद में डॉक्यूमेंट हाँ, अपना वी विल बी एडिंग इट इन दी। उसको tag कर देना, उसको या, लिंक दे देना, सो दे कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट। राइट। एक तो वो अवेयरनेस वीडियोस देखने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं,
दे शुड चेक कि गवर्नमेंट डीजी वेबसाइट पर वो कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं। राइट। तो डीजी वेबसाइट पर एक अंडर वन ऑफ द मेन्यू ऑप्शंस देयर इज अ लिस्ट ऑफ डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस राइट। फॉर उन्हीं में से करना कंडक्टिंग। है। तो दे मस्ट चेक कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो डीजी की वेबसाइट पे अप्रूव्ड है कि नहीं है। और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले उनको आईएमयू सीईटी का एग्जाम देके अपनी मेरिट लिस्ट वो ले तो लेनी नहीं होगी। पड़ेगा, वो तो है ही, आईएमसीटी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो उसकी क्वालिफाइड एक लिस्ट निकलती है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड, वो एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में जो भी नाम आते हैं बस वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ठीक है। नाम नहीं आया उस लिस्ट में, मतलब ये डिस्क्वालीफाइड। ठीक है। उसका कुछ कट ऑफ मार्क्स रहता है, एक सर्टेन कट ऑफ के ऊपर वालों की लिस्ट पब्लिश कर देते हैं, बाकी की नहीं करते, और तो रैंक भी रहती है उसमें। once you have that score, you see the list of colleges from the DG डायरेक्टर जनरल शिपिंग के साइट से, वहां and then देख you लो। make an application. यस। जो जब आईएमयू काउंसलिंग करोगे तो उस समय, वैसे तो आईएमयू काउंसलिंग में भी जो आइडियली आईएमयू काउंसलिंग में जब वो कॉलेज चूज करते हैं तो हम्म। अगेन वहां पर भी एक ऐसे कॉलेज होने ही नहीं चाहिए जो राइट अप्रूव राइट राइट नहीं है। राइट राइट तो राइट। दैट इज अ और पॉइंट इसमें ऑफ कोर्स इंटरव्यू टू। भी होता है क्या सर? आई मीन वंस दे हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर कॉलेज, नहीं, दे ऑल्सो। इंटरव्यू गवर्नमेंट कैंपसेस के लिए तो नहीं होता, नहीं होता। टू माय नॉलेज। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स हम्म। ओनली एन ऑनलाइन काउंसलिंग। ओके। बट प्राइवेट जो बड़ी कंपनीज है वो लोग अपना अलग से खाली आईएमसीटी के बेसिस, जैसा हमारा कॉलेज है एंग्लो इंडियन मैरीटाइम एकेडमी है करजत में हम्म। मुंबई के पास। हम्म। तो बड़ी कंपनीज जो है वो दे में डू देयर ओन एडिशनल टेस्ट, बट उनको भी आईएमसीटी देना पड़ेगा। जो आईएमसीटी में क्वालिफाई हो जाते हैं उन उन स्टूडेंट्स का एक अलग से एडिशनल एक अलग कंपनी से का टेस्ट भी एडिशनल होता है, टेस्ट होगा, वो मे बी कंपनी उसके कराती है। अंदर, मे बी उसके अंदर वो इंटरव्यू वगैरह आईएमसीटी होते के होंगे। पहले ही करा लेते हैं, वो आईएमसीटी अच्छा। के पहले ही करा लेते हैं, अच्छा, अपना इज इट? टेस्ट कर लेते हैं। उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, साइकोमेट्री टेस्ट भी होता है, सब होता है। उसके बाद दे शॉर्ट लिस्ट, एंड जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया उनको ये बोल देते हैं अब हम तुम्हारे आईएमसीटी का रिजल्ट वेट करेंगे। तो ओ। अगर वो उनको आईएमसीटी में रिजल्ट में क्लियर हो गए तो फिर उनको ले लेंगे अंदर। तो सर ये तो मतलब सिलेक्शन तो काफी स्ट्रिंजेंट है, मतलब इट इज नॉट इजी हाँ, टू अगर गेट अच्छी थ्रू। कंपनी में अच्छे कॉलेज में जाना है तो स्ट्रिंजेंट है। तो एंड स्ट्रिंजेंट एक्स है। वाई जेड किसी भी कॉलेज में, अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वो अच्छे नहीं, वो भी अच्छे हैं, मगर उस वहां पर जॉब की 100% गारंटी नहीं है। इफ यू गो टू गवर्नमेंट कैंपसेस तो 100% गारंटी नहीं है, और 100% गारंटी तक। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये मोरलेस, अगर आपने उनके इंटरनल एग्जामिनेशंस और रूटीन को क्लियर कर लिया है और आईएमए सीईटी में क्वालिफाई हो गए हैं, एंड इफ यू आर एबल टू गेट इनटू अ गुड प्राइवेट कंपनी, तो नहीं, जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हाँ, होती है। उसमें एक क्लैरिफाई कर देता हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट दो टाइप के हैं। हम्म। टोटल तीन तरह के इंस्टीट्यूट आप समझो। एक तो गवर्नमेंट कैंपसेस हो गए राइट। आईएमयू के। दूसरा, फिर दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट में अगेन टू सब टाइप्स। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑपरेटेड बाय शिपिंग कंपनी, जैसे हमारा कॉलेज है एंग्लो इंडियन राइट। मैरीटाइम एकेडमी। दिस इज राइट। ऑपरेटेड बाय एंग्लो इंडियन शिप मैनेजमेंट, जो वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। ओके ओके। तो इसी तरह से फ्लीट मैनेजमेंट एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने लास्ट ईयर एक अपना नोएडा में किया उसको अभी। सो दैट इज ऑपरेटेड बाय फ्लीट नाउ, कैरावेल ग्रुप। तो जो बड़ी कंपनी खुद कॉलेज ऑपरेट कर रही है, कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, तो उन प्राइवेट कॉलेजेस में तो जॉब गारंटी भी है और सब कुछ है, वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो सबसे ऐसी ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होंगे मेरे ख्याल से टू वो, गेट इन। हाँ, उनमें एडमिशन उतना ही टफ हो जाएगा, बिकॉज दे विल कंडक्ट देयर, वो बड़ी कंपनियां है तो उनका मतलब वो अपना एक। खुद की स्क्रीनिंग भी रखते हैं और उनकी अपनी खुद यस की यस। फ्लीट ऑफ शिप्स भी हैं, तो वो पढ़ा भी हाँ, रहे हैं और उनके पास आगे का काम भी है बेसिकली। उनके कॉलेज में फीस भी सबसे ज्यादा होगी। फीस भी वहां सबसे फीस ज्यादा भी होगी, ज्यादा आई एम है, श्योर। वहां सिलेक्शन भी सबसे डिफिकल्ट है। गेट इट लेकिन वहां गेट पर इट। जॉब की 100% गारंटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली हाई, बिकॉज ये एक्सट्रीमली हाई। कंपनियां बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं अपने कॉलेजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, एंड फैकल्टी वगैरह में। दे स्पेंड लॉट राइट। ऑफ मनी। आई गेट ठीक इट है ना। आई गेट इट। तीसरा, तीसरे वो प्राइवेट कॉलेज हो गए विच आर नॉट बैक, विच डोंट हैव अ बैकिंग ऑफ अ शिपिंग कंपनी, शिपिंग विच आर कंपनी। सिंपली सिंपली अ कॉलेज, किसी ने खोला, एक ट्रस्ट बना लिया, चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट ने एक कॉलेज खोल दिया है वहां डीजी नेचुरली। शिपिंग से अप्रूव करा लिया और अप्रूव्ड कॉलेज है, को हाँ, अप्रूव वो लिंक भी करा है। लिया, लेकिन उनके पास भी हाँ, अपने खुद के शिप्स लेकिन वो वगैरह भी हैं। ट्रस्ट, हाँ, वो एक ट्रस्ट रन कर रहा है। दे डोंट हम्म। हैव अ बैकिंग ऑफ, दे आर नॉट ऑपरेटेड बाय शिपिंग कंपनी। हम्म। तो इनमें क्या, इनमें भी अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इनमें भी हैं हम्म। अच्छे कॉलेज जहां पर मतलब जिनको अच्छी रेपुटेशन है। बट इस वाले कैटेगरी में रिस्की एंड डेंजर, ऐसे गड़बड़ वाले परफेक्ट कॉलेजेस भी इसी कैटेगरी है। में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी में आदमी को बहुत केयरफुल होना चाहिए। Right. I think we've given quite in-depth clarity to people about course exams in institution. एक आखिरी सवाल और है, just a very quick answer here. वैसे तो आप ऑलरेडी बोल चुके हो,
फैमिलीज कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रिस्की इंस्टीट्यूट है कि ये प्लेसमेंट लिंक्ड इंस्टीट्यूट है? डीजी शिपिंग आपने एक बता दिया, उसके ऊपर लिस्टिंग। दूसरा आपने बता दिया कि इफ कॉलेज हैज गॉट देयर ओन शिप्स तो वो प्लेसमेंट लिंक्ड हो गया। रिस्की के अंदर जो डीजी शिपिंग पे लिस्टेड नहीं है, दैट इज इट। नहीं, देखो रिस्की में दो तीन तरह के इश्यूज हैं, मैं बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम, दो चार चीजें समझने की हैं इसमें। ओके। एक तो एज आई सेड कि तीन तरह के कॉलेज हैं: गवर्नमेंट, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस ऑपरेटेड बाय अ कंपनी, शिपिंग यस। कंपनी, एंड प्राइवेट कॉलेज नॉट ऑपरेटेड बाय शिपिंग बाय कंपनी। शिपिंग कंपनी। तो ये नॉट ऑपरेटेड बाय शिपिंग कंपनी वाले जो कॉलेजेस, इसमें अच्छे और खराब दोनों तरह के कॉलेज हैं। ओके। तो इसमें एक तो इनमें जो कॉलेजेस हैं, तो एक जनरल थोड़ा सा भी, अगर आजकल तो कम्युनिकेशन जमाना है, अगर थोड़ा सा भी लोग फैमिलीज या पेरेंट डिस्कशन करें इधर उधर, तो उनको पता पड़ जाएगा कौन से अच्छे हैं कौन से। मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ ऑफ पॉडकास्ट कि कोर्स कौन दैट इज अच्छा है नॉट द कौन खराब पर्पस। है, आई कांट टेक दैट नेम। बट ये बड़ी इजिली पता किया जा सकता है, हम्म। नंबर एक। तो इनमें जो खराब है उनमें देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट देम, वो लीगली चल रहे हैं। खराब इसी सेंस में है कि उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अच्छा ऑल्दो नहीं लेट है। मी टेल यू, हाँ, ऑल्दो लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर आप डीएनएस कोर्स कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, हम्म। डीएनएस कोर्स, राइट। तो डीजी ने एक रूल बना दिया था कि पास्ट में कि आप डीएनएस का स्टूडेंट तभी ले सकते हैं अपने कॉलेज में अगर आपका एक टाई अप है किसी आरपीएसएल कंपनी के साथ, किसी शिप मैनिंग कंपनी के कंपनी के साथ, एंड साथ। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इस बंदे को जॉब मिल जाएगा। कि ऐसा मतलब एक 12 महीने डिक्लेरेशन देना पढ़ाने के बाद 18 महीने की पड़ेगा, कैडेटशिप हम लगा देंगे बंदे की। लगा देंगे। वो ऐसा एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है कॉलेज को, आईएमयू को। आईएमयू को डीजी नहीं मांगता, वो डिक्लेरेशन आईएमयू को देना पड़ता है कि हम्म। हमारे पास इनकी जॉब की मतलब हमने टाई अप कर लिया है, और कर उसका एक देंगे। लेटर देना पड़ता है। वो राइट। लेटर इनफैक्ट वो कंपनी इशू करती है, आरपीएसएल बोलते हो ऐसी कंपनीज को, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट कंपनीज होती है, आरपीएसएल बोला जाता है। बेसिकली शिपिंग कंपनीज हैं ये। राइट। तो उन लोगों को एक लेटर देना पड़ता है कि वी हियर बाय डिक्लेयर दैट वी विल एम्प्लॉय दीज गाइज इन आवर कंपनी। तो ऐसे प्रोसीजर तो है, लेकिन इसमें अब कहाँ मामला फंसता है? इसमें फंसता है ऐसे कि बहुत सारी आरपीएसएल ऐसे रजिस्टर्ड हैं जो बोगस है। उन्होंने आरपीएसएल रजिस्टर कोई भी कर सकता है विद सर्टेन, उसके थोड़े से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं डीजी के। तो आपने बहुत सारे लोगों ने आरपीएसएल कंपनी लाइसेंस लेके बैठ गए। अब ऐसे बोगस आरपीएसएल से ऐसे एक डिक्लेरेशन लेके लोग कैडेट ले लेते हैं, कुछ खराब कॉलेजेस कैडेट ले भी लेते हैं, बाद में उनका पर भगवान जाने नहीं क्या हो होता पाता है। है फिर। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है। बच्चे और दूसरा, पेरेंट्स को रिसर्च करना पड़ेगा मतलब। तो रिसर्च उन्हें, देखो सबसे सेफ बेट ये है कि बेस्ट तो ये है कि भाई जो कॉलेजेस ऑपरेटेड बाय शिप, ऐसे पांच ही छह कॉलेजेस जो कोई शिपिंग कंपनी हम्म। चला रही है इंडिया में, ऐसे राइट। पांच छह ही है, तो या तो उनमें डाल दें, या सेकंड बेस्ट, या मैं कहूंगा गवर्नमेंट कॉलेज में डाल दें। एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो देयर इज सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल, क्योंकि राइट। गवर्नमेंट एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ दे विल टेक केयर। तो गवर्नमेंट, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस में दे शुड डू अ प्रॉपर रिसर्च कि कौन सा प्रॉपर कॉलेज आना रिसर्च। ठीक है कौन सा नहीं है ना, कोई स्पेसिफिकली इफ दे सस्ता। आर नॉट बैक्ड बाय अपना शिपिंग हाँ, दिस तो थिंग, दे शुड दे जस्ट हैव टू। सी द बैकग्राउंड की वो कितना रिलायबल है नहीं है। दे शुड कंसीडर, दे शुड डू अ रिस्क असेसमेंट कि राइट। जॉब मिलेगा कि नहीं। मेन रिस्क क्या है जॉब का? अच्छा, एक और इसमें कैटेगरी रिस्की वाले में आती है, लेट मी टेल यू। आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीसी कोर्सेज आर देयर, राइट। तो मैंने बताया था दो मेन है, 12 महीने का डीएनएस एंड 3 साल डीएनएस का एंड द बीएससी। 3 ईयर बीएससी। बट ऐसे भी इंडिया में कॉलेजेस हैं जिन्होंने किसी फॉरेन कंट्री से टाई अप करके ओके। अंडर अ फॉरेन कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक 3 महीने का कोर्स प्रीसी चला रखा है। हम्म। ये डीजी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स नहीं है, इट इज एट नहीं मे है। बी किसी ने ऑस्ट्रेलिया से टाइप कर लिया और एक समझ तीन गया। महीने का प्रीसी कोर्स करवा रहा है, ओके। या किसी ने ओके। मार्शल आइलैंड से टाइप कर लिया उनका। तो ये वाले कॉलेजेस भी ना, ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया, ज्यादा नहीं है कम है, लेकिन ऐसे कॉलेजेस हैं। हम्म। मैं इनमें, मेरा रिकमेंडेशन ये है, अनलेस यू आर 100% श्योर, यू शुड नॉट इनमें जाना गेट इनटू रिस्की इट। है। ओके। अनलेस यू हैव 100% अश्योरेंस की तुम्हारा बच्चा का मामला गड़बड़ नहीं होगा, उसको जॉब मिलेगी प्रॉपर। हम्म। तो ये ऐसे वाले भी एक तरह से रिस्की हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड वाले भी इसमें अच्छे, लीगल भी आते हैं, इलीगल वाले भी इसमें आते हैं, जो हम्म। बोगस होते हैं, जो एक्चुअली बदमाशी कर रहे होते हैं। ओके। मैं कैप्टन मार्टिन, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ फॉर द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स, द एस्पिरेंट्स, एंड मे बी ऑल्सो द स्कूल्स हु गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन। आप सोचिए कि हाउ एनरिच दे वुड बी विद द इंफॉर्मेशन दैट यू आर शेयरिंग, and this information for them to get this level and depth of information, I think is pure gold in terms of if they really want to get into this career. And yeah, wonderful, thank you so much, बहुत ही नहीं, in दिस depth इज and I think वेरी it's going इंपॉर्टेंट, wonderful. बिकॉज
पास्ट में, लेट मी टेल यू अबाउट 10-15 years ago, there was a time when there were, I think, more than 10,000 cadets in India जो डीएनएस करके they were jobless. आई थिंक मोर देन 10,000 ऐसे थे जो जॉबलेस थे. इतने कैडेट्स की ट्रेनिंग हो गई थी और जॉब नहीं मिल रही थी. तो दे वर ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रैंडेड. बड़ा प्रेशर था डीजी पे कि उन्होंने बड़ा प्रेशर डाल दिया कि सब डीएनएस करके बैठे हैं, आपने अप्रूवल दिया था और अब इनको जॉब नहीं मिल रही है. तो एक 10-15 years ago में भी, अराउंड 15 साल पहले, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत टाइट किया उसको. एंड अभी थिंग्स आर मच बेटर. बट डीएनएस कोर्स में ये एक इशू है कि अगर उसको जॉब की गारंटी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो डिप्लोमा किसी काम का नहीं है. जो बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स कर रहा है 3 साल वाला, उसको एक एडवांटेज है थोड़ा सा कि उसको डिग्री मिल जाएगी, जहाज में जाने मिल जाएगी उसको. तो डिग्री मिल गई तो मान लो जॉब वहां नहीं मिला तो ठीक है, वो कोई आईएएस में, बैंक जॉब, बैंक कॉम्पिटिशन में कंप्लीट, मतलब हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जो कॉम्पिटिशन खुलते हैं उनमें जा सकता है. ठीक है. अब सर मान के चलिए बंदा चला गया मर्चेंट नेवी में. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेट ऑफ माय क्वेश्चंस, करियर लैडर एंड इनकम रियलिटी. वी विल नॉट गेट इनटू ग्रेट डिटेल्स. एक आप मुझे बेसिक पॉइंटर्स में बता दीजिए. करियर लैडर फ्रॉम कैडेट टू कैप्टन, डेक साइड पे कैसा रहेगा? या तो डेक साइड में यू बिगिन एज अ कैडेट. तो अगेन डीएनएस कैडेट हो तो 18 महीने की सेलिंग, जो 18 महीने नॉर्मली 3 जहाज में या 2 जहाज में आप करते हैं, तो 9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट हाँ, करने आप हैं या 18 महीना 6 साथ महीने में के 3 करना तो कॉन्ट्रैक्ट. इम्पॉसिबल है. साथ में नहीं, कोई कंपनी देगी भी नहीं, लीगली अलाउड भी नहीं है. इट इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो वो कम से कम आपको वो 18 महीने करने के लिए 2.5 साल लग जाए, 2.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि बीच में घर आओगे, थोड़ी छुट्टी लोगे वगैरह. तो एक बार आप कैडेट सेलिंग कंप्लीट करने के बाद 12 महीना, बीएससी वालों को 12 महीना करना पड़ता है, डीएनएस को 18 महीना. उसके बाद आपने जब एग्जाम दे दिए और आपका लाइसेंस आ गया, तो नाउ यू गो एज अ थर्ड ऑफिसर. उसमें भी आजकल थोड़ा फ्लड है मार्केट में, तो एडिशनल थर्ड ऑफिसर या जूनियर वॉच कीपिंग ऑफिसर बोलते हैं, JWKO, इस रैंक में लेते हैं. तो वो भी सर्टिफाइड ऑफिसर है, बट उसकी सैलरी जो है करीब $1,200 से $1,500 के आसपास होती है. सैलरी पे मैं आता हूँ सर. सैलरी पे आई हैव गॉट अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली. ओके, सैलरी अलग से बात करते हैं. तो आप थर्ड ऑफिसर बन गए सेकंड मिनट लाइसेंस लेने के बाद. उसके बाद एक आप ये मान के चलो कि कम से कम 4-5 साल के बाद आप अगला एग्जाम देंगे, जो चीफ ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है. तो थर्ड ऑफिसर बन के आप 2-3 जहाज के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप सेकंड ऑफिसर बन जाओगे. यानी थर्ड ऑफिसर टू सेकंड ऑफिसर बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना. जो आपने कैडेट का एग्जाम दिया था, उसमें जो लाइसेंस मिला था, उस लाइसेंस का नाम ही था सेकंड मेट. लेकिन आपने इनिशियली सेल किया फॉर 2 to 3 years एट थर्ड ऑफिसर एंड देन ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो गया, सेकंड ऑफिसर बन गए, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ा. फिर सेकंड ऑफिसर भी आपने मान लो 2-3 जहाज सेल कर लिया. अब आपके 5-6 साल हो गए. अब आपको एक अगला एग्जाम देना पड़ेगा, चीफ ऑफिसर का एक एग्जाम. अगेन गवर्नमेंट डीजी शिपिंग MMD एग्जाम कंडक्ट करता है. वो एग्जाम पास करेंगे, साल भर लगता है. वो एग्जाम पास कर लेंगे, 1 साल से ज्यादा ही लगता है. तो उसके बाद नाउ यू आर एलिजिबल टू गो एज चीफ ऑफिसर ऑन अ शिप. अब आप सीनियर ऑफिसर बन गए, वो लाइसेंस मिलने के बाद, चीफ ऑफिसर लाइसेंस मिलने के बाद, देन यू गो एज अ चीफ ऑफिसर ऑन अ शिप. यू आर एलिजिबल, मतलब है ना. हो सकता है फिर भी सेकंड ऑफिसर कंपनी ले ले, अगर फ्लडिंग बहुत है, डिमांड सप्लाई इक्वेशन की बात है. बट ये है कि आपका चीफ ऑफिसर लाइसेंस हो गया. अब आप ऑन बोर्ड या तो एज अ चीफ ऑफिसर चले जाए, या सेकंड ऑफिसर के बाद में कंपनी ने प्रमोट कर दिया. ओके. फिर एज अ चीफ ऑफिसर आप मान लो आपने सेल किया और 3 साल सेल किया, और उसके बाद आपको फिर एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो लास्ट एग्जाम है, मास्टर FG बोलते हैं, कैप्टन का एग्जाम होता है. वो एग्जाम देने के बाद, वो पास करने के बाद आपके पास मास्टर का लाइसेंस आ गया. मास्टर FG बोलते हैं, एक तरह से कैप्टन का लाइसेंस समझो. तो वो लाइसेंस मिलने के बाद यू आर एलिजिबल टू गेट कमांड ऑन अ शिप. अगेन लाइसेंस मिलती है, कमांड नहीं दे देते, बट ये कि आप एलिजिबल हैं, आपका लाइसेंस है. हाँ, तो जब कंपनी को लगता है ही इज नाउ, इसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, इज गुड इनफ, ही हैज गॉट कॉन्फिडेंस टू टेक कमांड ऑफ अ शिप, तो उसको कमांड दे देंगे, कप्तान. तो इसका मतलब रियलिस्टिकली बनने में 12 साल लग जाते हैं, आप ये मान के 10 से 12 साल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट रियलिस्टिकली टेक फ्रॉम कैडेट टू कैप्टन? अगर सब कुछ सही समय पे गया एंड इफ द पर्सन इज विलिंग टू टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट लेवल, 10 to 12 years. 10 to 12 years. प्रीसी कोर्स खत्म करने के बाद से, फ्रॉम द टाइम यू कंप्लीटेड योर प्रीसी कोर्स, बीएससी पूरा हो गया या डीएनएस पूरा हो गया, उस पॉइंट से गिनना शुरू करें, तो 10 to 12 years का. So that's the minimum, right? 10 to 12 years मिनिमम है. 10 years एक तरह से मिनिमम है. अगर सब कुछ ऑल गोइंग वेल, सब अच्छा चलता गया और आप टाइम टाइम से शिप पे जाते गए, एग्जाम भी टाइम टाइम से क्लियर करते गए, तो एक 10 years तो आप मान के चलो कि लगता है. बहुत ही कोई रेयर केस में कोई 9-9.5 साल में कर ले, लेकिन आप उसको 10 ही मिनिमम मान के चलो. सैलरी प्रोग्रेशन सर कैसा रहता है, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स? कैडेट से नहीं शुरू करते?
सैलरीज में अडॉप्ट भी शुरू क्या है, कर कई दिया। कई तरह के जहाज होते हैं। पहले सैलरी भी बड़ा जेनरिक टॉपिक है, बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शिप्स, हम्म। टैंकर्स हैं, ड्राई शिप्स हैं, पैसेंजर शिप्स हैं, राइट। ऑफशोर, बहुत तरह के जहाज होते हैं। बट फिर भी एक जनरल मान लो, मैं एक बल्क कैरियर, एक ड्राई शिप्स के हिसाब से अगर बताऊं, तो कैडेट को तो $500 पर मंथ यूजुअली होता है, चाहे बल्क कैरियर पे जाओ या टैंकर पे, जनरली $500, $500 पर मंथ आप मान के चलो कैडेट का। ठीक है। एंड थर्ड ऑफिसर को आप अगर आप जूनियर ऑफिसर गए सेकंड में लाइसेंस लेने के बाद, शुरू में आप 2 साल ये मान के चलो जूनियर ऑफिसर ही जाओगे। ठीक है। वो उसको JWK बोलते हैं, उसमें आपकी सैलरी $1000 से $1500 के बीच में रहेगी। ओके। ठीक है, ये मैं आज के स्केल्स बता रहा हूँ, फ्यूचर में राइट, जो राइट, ऑफ होगा वो, कोर्स, ऑफ कोर्स, है ना। ऑफ कोर्स। तो 1000 to $1500 जूनियर ऑफिसर रैंक पर मंथ। बट राइट। देन इसमें एक और कैविएट है कि व्हेन आई से $1000 to $1500 पर मंथ, इट इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन स्पेंट ऑन बोर्ड। हाँ हाँ, समझ गया मैं। आपने 6 महीना काम किया, वो 6 महीना घर बैठे, वो घर तो में बैठ उसका के कुछ पैसा नहीं नहीं मिल मिलने रहा, वाला। उसका ठीक है। खाली 6 महीने जितने दिन ठीक काम है। किया उतने दिन का पैसा है। पैसे मिल गए, ठीक है। ये एक समझने की बात। अच्छा, दूसरा, फिर आप थर्ड ऑफिसर बन गए, जूनियर ऑफिसर हम्म। से बिकम थर्ड ऑफिसर। तो हम्म। थर्ड ऑफिसर रैंक में यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ समवेयर बिटवीन $2500 to $3000 पर मंथ, रफली, ओके। अप्रोक्सीमेटली इन दैट ओके। रेंज। 22, समवेयर इन दैट रेंज, टू ढाई से थाउजेंड तीन टू थ्री हजार डॉलर मान के चलिए। हाँ, ढाई से तीन बॉल हजार बॉल डॉलर पार्क नंबर्स, ठीक है। अगेन इसमें थोड़े वेरिएशन, अलग अलग कंपनी है, बहुत कुछ है, मैं बट द एक बहुत रेंज इज जनरल ओके, फिगर। आई गेस, हाँ हाँ, जनरलाइज्ड। $2500 to $3000 आप मान के चलो थर्ड ऑफिसर को। पर आप सेकंड ऑफिसर बन गए तो यू कैन थिंक ऑफ इट समवेयर इन द ब्रैकेट ऑफ $4000 to $5000 पर मंथ, एज अ सेकंड सेकंड ऑफिसर। ऑफिसर $4000 to $5000 के फाइव बीच में थाउजेंड मिल डॉलर जाएगा। पर मंथ के बीच में आप ये मान के चलो, यस, हम्म। अराउंड दैट मच। चीफ चीफ। ऑफिसर बनने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड, लेट्स से अबव 6000, फॉर श्योर, आई थिंक 6 to 7.5, 8000 तक में भी। 7.5, $8,000 per month for the time that you're sailing as a chief officer. एज अ चीफ ऑफिसर, यस। And एंड as a बाद में captain कैप्टन finally? बनने के बाद ऑन अ बल्क कैरियर में भी, पहला जहां पहली बार कैप्टन बना है, 8,500 आई थिंक स्टार्ट होगा, रफली अगेन बता रहा हूँ, 8,500 से। एंड देन सीनियर जो कैप्टन बल्क कैरियर्स में, दे कैन गो अप टू मे बी $11,000 to $12,000 पर मंथ। And what about tankers, sir? बट डिपेंड्स ऑन कंपनीज ऑल्सो, इसमें बार्गेन, कई बार कंपनीज में बार्गेनिंग भी लोग करने लगते हैं कि इतना सैलरी दो, उतना दो। ये बल्क टैंकर्स में कैरियर। थोड़ा सा ज्यादा, ये हाँ। बल्क कैरियर्स का बताया मैंने, या ठीक है। कंटेनर शिप्स एंड बल्क कैरियर्स, ठीक है। ड्राई शिप। हाँ। टैंकर्स में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, एंड सीनियर रैंक्स में ज्यादा डिफरेंस होता है टैंकर्स में। राइट। तो अगर टैंकर पे कोई कैप्टन है तो ही कैन एक्सपेक्ट $15,000, तो बल्क कैरियर का 15,000 पर मंथ। कैप्टन बल्क कैरियर के कैप्टन स्टार्ट हुआ था 8,500 पे, और शायद सीनियर होते होते 11,000 तक में भी गया। ये राइट। अगेन एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। तो टैंकर मास्टर आई थिंक विल प्रॉब्ली स्टार्ट ऑन मे बी 10,000, 10.5, 11,000 आई गेस, ओके, है एंड ना। गो तो अप टू रफली अराउंड। बता रहा हूँ, इट कैन गो अप टू 15,000 भी, उससे भी ऊपर ओके। हो सकता है। ओके, लवली, लवली। लवली। कुछ सवाल बचे हैं सर मेरे पास में, बिफोर आई एंड दिस। कुछ सवाल मैंने टेक्नोलॉजी का डाला हुआ है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एंड फ्यूचर के हिसाब से। हाउ हैज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन चेंज द रोल ऑफ डेस्क साइड ऑफिसर्स? कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या टेक्नोलॉजी का? इम्पैक्ट तो पड़ा है काफी, ओवर लास्ट 20-30 years टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड लाइक एनीथिंग, एंड लॉट ऑफ ऑटोमेशन हैज कम। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ गया, लाइक व्हेन आई वाज सेलिंग, तो इंटरनेट वगैरह का इतना एंट्री नहीं था सी में, मतलब हम्म। नहीं के हम्म। बराबर था। हम्म। इनफैक्ट अर्ली, लेट्स से 1990s में तो लाइफ वाज वेरी सिंपल, बिकॉज आप पोर्ट से निकले एंड यू आर आउट एट सी एंड यू आर अवे फ्रॉम द होल, कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, तो यू आर वेरी पीसफुल ऑन बोर्ड। कोई आपको अभी क्या है ना, ऑल द शिप्स आल्सो हैव इंटरनेट नाउ। ऑफ कोर्स। तो इसका प्लस साइड भी है कि यू आर कनेक्ट, आप शिप में ज्यादा अच्छी इंटरनेट स्पीड एज कंपेयर टू किनारे से। सो यू आर गेटिंग गुड हाई स्पीड इंटरनेट ऑन बोर्ड, आप फैमिली से वीडियो कॉल कर ले रहे हैं, बात कर ले हम्म। रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल नाउ। बट उसके इसका फ्लिप ऑन साइड, नेविगेशन इसका साइड सर, नेविगेशन साइड में टेक्नोलॉजी का कुछ नेविगेशन इम्पैक्ट? में टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल, पहले चार्ट वर्क होता था, पेपर चार्ट यूज होता था, शिप्स नेविगेट करते थे ऑन पेपर चार्ट। अब वो एक्डिस आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब आ गया, मतलब उसको भी आके हो गया 15 साल ऊपर, ओके। 15 साल से ऊपर हो गया। So, but then it is very sophisticated technology, and it makes navigation much more easier and simpler, ओके। because it's a electronic chart. You see the chart on a display, and you can see your ship moving. जैसे Google navigation हम राइट, करते हैं राइट, राइट, मोबाइल राइट। में, literally like that, you can see the map and you can see your ship मतलब moving on आपको the map. आपको चांद देख के डायरेक्शन लगाने की हाँ, जरूरत नहीं है हाँ, वो नहीं है, वो टाइम गया। वो वो टाइम टाइम की गया। वो आपको चांद सितारे और सूरज वगैरह देख कर आप पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर पेपर राइट। चार्ट में प्लॉट कर रहे हैं, वो सब ऐसा नहीं है अभी। तो इट्स ऑल नेविगेशन मच। आसान हुआ है,
द इंटरफेरेंस आई मीन आसान इन तो टर्म्स हुआ है। ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो उसके वजह से कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ कम्युनिकेशन बुरी क्योंकि भी होंगी। बहुत इजी एंड सस्ता हो गया है, तो इसका गुड साइड ये है कि चलो आप फैमिली वगैरह से इजीली कांटेक्ट कर राइट, रहे हैं। राइट, हमारे टाइम में एक फोन करते थे तो ऑफ बारह कोर्स। डॉलर पर मंथ का, पर मिनट सॉरी, 12 डॉलर पर मिनट का बिल देना पड़ता था। अगर राइट, 3 मिनट बात की तो $36 कट गया सैलरी से। राइट, राइट, अब तो फ्री की कॉल है, इंटरनेट फ्री, वो भी वीडियो कॉल। तो राइट, ये एडवांटेज है, बट देन फ्लिप साइड ये है कि नाउ कंपनी सिटिंग ऑन योर हेड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। सो उससे आपका वर्क प्रेशर, जॉब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गए। So because of this, sir, is merchant navy becoming safer and more structured because of all the नहीं, technology influx? yeah, safety I will say is definitely improving, has improved over decades. काफी safety बढ़ी है because of lot of international उसमें legislation है, lot of port state control inspector ships पे आते हैं जो inspect करते हैं कि तुम्हारा, and they especially inspect the safety items only. तो because of a very strong inspection regime in the shipping Hmm. industry, Hmm. ships are very safe now. पहले भी safe थे, अब बहुत ज्यादा, और safety बढ़ी है, no doubt बढ़िया, about it, बढ़िया। much Okay, safer. लेकिन प्रेशर्स ऑफ जॉब भी बहुत बढ़ गए हैं। बढ़ प्रेशर गए आर हैं। शूटिंग थ्रू द रूफ, Like वो you said, बहुत with all the हाई legal प्रेशर है। compliances and the documentation and other things. कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, लिटरली कई बार तो इट्स, और And सीनियर then रैंक्स में इट कैन बी and वेरी। the criminal, जो आप जो बता रहे थे कि I mean the criminal charges हाँ, getting framed on क्रिमिनल, हाँ, various कोई नेग्लिजेंस को भी समटाइम्स दे पुट इट एज अ criminal अंडर अ offense, क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोलते हैं, criminal इट्स अ negligence हो गया। क्रिमिनल। आपने तो ठीक है। All right. दो बोथ साइड्स। फाइनल क्वेश्चन सर। और या ऐसे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय सेल करने के बाद मे बी आफ्टर गेटिंग इनटू अ फैमिली और मे बी वंस दे हैव किड्स एट होम वो सेल करना बंद कर देते हैं। ठीक है। सो इफ समवन स्टॉप सेलिंग लेट्स से आफ्टर 10-15 ईयर्स, बिकॉज उतना तो बंदा सेल कर ही लेता है मेरे एक्सपीरियंस में, उसके बाद में व्हाट आर दी शोर बेस्ड जॉब ऑप्शंस और करियर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल? आप ऑफ कोर्स एक टिपिकल एग्जांपल हैं उसके। या सो इसमें व्हाट आई से कि मेनी पीपल थिंक लाइक दैट, प्लान लाइक दैट, कि हम कैप्टन बनने के बाद सेलिंग बंद कर देंगे। आई वाज वन ऑफ देम एंड लॉट ऑफ पीपल डू इट वेरी सक्सेसफुली। तो इसमें मैं व्हाट आई वुड सजेस्ट इज पेरेंट्स को एंड बच्चों को कि आप अगर एंटर करते हो मर्चेंट नेवी, तो कैप्टन बनने तक के पहले मत छोड़ो। ओके, वंस यू गेट योर कैप्टन लाइसेंस एंड कम से कम 2 या 3 जहाज आप, 1-2 साल आई वुड से, एटलीस्ट 2 साल एज अ कैप्टन सेल कर लो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए कमांड करने का, शिप कमांड करने का। राइट, उसके उसके बाद यू शुड थिंक ऑफ लीविंग इमीडिएटली। फिर लंबा भी नहीं रहना चाहिए एज कैप्टन। ओके। If you have saved 15-20 years as captain and then तुम किनारे जाओ आएगा, तो it is not a good idea, because then you'll have much junior people, much junior to you, sitting as your bosses. And you will then तो वो also एक अच्छी not be बात नहीं है। aligned with that kind of life because you हाँ will हाँ, be वो leaving एग्जैक्टली, शोर लाइफ इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। तो right. आप कैप्टन बन गए, 2-3 जहाज कर लिए, दैट्स द राइट टाइम टू चेंज ओवर इनटू अ शोर जॉब सिनेरियो। Hmm. शोर जॉब कई तरह के शिपिंग कंपनी के ऑफिसेज में देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स। एक तो मैनिंग डिपार्टमेंट है, फ्लीट पर्सनल डिपार्टमेंट Hmm. बोलते हैं, क्वालिटी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, QHSC बोलते हैं उसको, QHSC डिपार्टमेंट, क्वालिटी Hmm. हेल्थ एंड सेफ्टी। एंड देन आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, देन यू हैव IT डिपार्टमेंट है, यू हैव ट्रेनिंग ट्रेनिंग, जिसमें आप हैं ट्रेनिंग या डिपार्टमेंट जिसमें मैं हूँ, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो कई डिपार्टमेंट है, हर जगह कैप्टन की जरूरत है। बट Hmm. कैप्टन आप हैं तो ही ये सब जॉब मिलेंगी। अगर आप चीफ ऑफिसर बनने के बाद आपने छोड़ दिया, तो नहीं सेकंड मिलना। ऑफिसर के बाद छोड़ दिया, तो आपको कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी, तो लो इसका पेइंग जॉब मिल मतलब जाएगी कुछ। if you get into merchant navy, I am just summarizing what you said, and या if you या are या able to spend those 10-15 years at sea, कैप्टन बन गए, एक दो आपने शिप कमांड कर ली एज अ मास्टर, फिर आ जाओ उसके किनारे, बाद यस। में आपके पास, लेकिन बहुत समय के बाद भी नहीं, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स यू कैन हाँ, मतलब कैप्टन बन के बहुत लंबा मत सेल करो। अगर मतलब, शोर जॉब में आना है तो 2 साल मैक्सिमम एज अ कैप्टन, फिर आप आ जाओ शोर में। and then you have plenty of options is what I understood, Because plenty, see, by the age of 31, 32, you'll become a captain. right, So by the age of 34 or 35, come to a shore job. So 35 के आजकल private companies में retirement is around 65. So 35, right, you still have 30 years of job left in you. 30 years of job left and क्वालिटी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके You ऑपरेशन। rise in the rank ladder ashore also. You can go on to become a general manager, a director, a technical director, executive director, सब कुछ बन सकते हो। And even there, I'm sure the money may not be as high as what No, a no, it sailor is would pretty get, good. but it's pretty good. It is pretty good money. Pretty good मतलब money. ऐसा भी नहीं है, Hmm. ठीक है, it is not
filthy rich, but it is a but it pretty is decent for a very good. You can live a very for a good very life good amount. with all luxuries and everything. Yes, yes, no doubt. Wow, wow. So that those Captain Pandey were my 20 questions. From your experience, you tell me. I mean, have we covered almost everything that a parent or a child should know about getting into this? क्योंकि हमारा research काफी था इसके अंदर, and I obviously have shared this thing with you. So your comments on whether we've shared everything or we've missed out on anything आपके हिसाब से? नहीं नहीं, आई थिंक इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. योर क्वेश्चंस वर वेरी वेल थॉट ऑफ. आई थिंक इट वाज वेरी वेल रिसर्च्ड की व्हाट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, बिकॉज ज्यादातर कंसर्न वाली चीजें आपने कवर कर ली. हु शुड गो, पेरेंट्स को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए. सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि गलत कॉलेज में मत एडमिशन करा दो कि बाद सही में बात जॉब है, ही नहीं मिल रही है. सही बात है, ये सब. सही बात एंड है। देन गोइंग, मेरा एक ही वर्ड ऑफ एडवाइस है जो इसमें मैं, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज हियर वेयर कैडेट्स आते हैं हर साल. तो व्हाट आई समटाइम्स, कुछ बच्चे आके छोड़ देते हैं 1-2 महीने के बाद, आफ्टर हैविंग स्पेंट सो मच ऑफ फीस, गिवन सो मच ऑफ फीस, एंड देन दे से हमें नहीं करना है ये. हम्म। तो ये एक एलिमेंट है जो मैं एडिशनली ऐड कर सकता हूँ कि समटाइम्स पेरेंट्स या बच्चे भी समटाइम्स पेरेंट्स को ही पुश फोर्स कर देते हैं कि नहीं हमें मर्चेंट नेवी में ही जाना है. एंड देन दे कम एंड रियलाइज कि दे डोंट बिलोंग हियर, उनको यहाँ का शेड्यूल रूटीन पसंद नहीं नहीं आ जम रहा रहा है. है। तो व्हाट आई से इज कि वन शुड रियली डू अ प्रॉपर रिसर्च. क्या हो रहा है आजकल, इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है. कोई हमारा सीनियर है, 1 साल सीनियर है, वो न्यूयॉर्क शिप गया था, उसने वहां जाके एक मैकडोनल्ड में कुछ बियर या कुछ दिखाया, रील बना दी. अब ये देख रहे हो, और ये तो बड़े मजे कर रहा है न्यूयॉर्क में यहाँ पर. बट द फैक्ट इज those few seconds की Instagram reels don't tell you the real The story. real story of what a merchant navy officer does. The pain, the I hard work understand. and pain which goes into reaching there, it doesn't come out on Instagram reels. Get it. So it should Get be it. very thoroughly researched कि तुम जिसमें घुस रहे हो. I would suggest only one thing, that more than knowing the pros of the career, know the cons of the Cons career. of the career. You should have Very researched thoughtful. thoroughly Very, all the very negative thoughtful. aspects of the job. Very अगर thoughtful. negatives आपने पता कर लिए हैं तो पॉजिटिव आपको नहीं भी पता, तो बाद में पता पड़ेगा तो अच्छा Get it. लगेगा. Get it. बट आपने पॉजिटिव तो पता कर लिया, आ गए, बाद में पता पड़ा इसमें ये भी नेगेटिव हो, आपको फिर देन यू आर फीलिंग मिजरेबल. And the तो cons ये super power रिसर्च. the pros और उसके बाद में then you are left. You have to just हाँ, no यस option but यस to यस change. यस, द All right. So नेगेटिव साइड Captain शुड बी Pandey, कवर. before I let you go, I have prepared a short rapid fire question. Oh my god. 5 questions for you. One word answer quickly. So it Okay. should be Quickly instinctive. का, ठीक है? okay, you'll have to give हाँ. me maybe few नहीं नहीं minutes. चलो. I will not. I mean, you can take whatever time, but it is still it's in the zone of it being a rapid fire. ठीक है? I've kept the Okay. questions pretty straightforward. Question number one. Yeah, one Bridge. word answer. One word answer as much as possible and quickly. Okay. Bridge or shore jobs, which gives more adrenaline? This is subjective. To me, what was the question? Ship I or mean, shore job? No? yeah, I mean shore on board or the shore jobs, which will give more adrenaline? ये डेफिनेटली एड्रेनलिन शिप जॉब में ज्यादा है. ज्यादा है. Okay. One quality every aspiring deck officer must have. No compromises on that quality. I would say integrity and resilience. Resilience is very important. Okay. Hardest part of the life at sea that students don't know about. That is your inability to plan. Your plans don't work out at sea. Okay. That's the biggest challenge of sea. You plan something and then it'll go for a मतलब toss. so much so कि शिप पे तो अपना आपका वेसल में तो ब्रेक भी नहीं लगता. नहीं मतलब यू कांट प्लान. आई मीन यू कांट से कि I get कॉन्ट्रैक्ट it. I get it. 31 अगस्त को खत्म हो रहा है तो अक्टूबर में बहन की शादी रख दूं क्या, 2 महीने Get it. का. ये सब नहीं चलता है. यू कम होम एंड देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू. Perfect. One myth about merchant navy you want to break. Yeah, I mean, it reminds me of students. Sometimes students asking, sir, ये जो what is that Cuba के पास, अरे what was that triangle? What the triangle is? Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. yes. That Bermuda कि वहाँ पे Triangle, शिप डूब जाती है. हाँ, कि वहाँ पे ships भी डूब जाते हैं, हवाई जहाज डूब जाते हैं. सब वो झूठ It's है. a absolute myth. Okay. I have traveled over Bermuda Triangle n number of times. Okay. And nothing happens there. Okay. So, final question. If a 17-year-old student watching this right now, should they choose merchant navy? One line advice. No, it depends on a person's nature. One should see what, if you are a person not extremely emotional and kind of, you're a happy-go-lucky type and not too connected with anyone, then maybe you can go for this career.
then it is good for you. It is a very enjoyable career, provided you are not extremely emotional and family sentimental Get person. it, get it, थोड़ा सा get it. Okay, okay. it's a So, good career. It is a very good career. Captain Pandey, thank you so much. We've completed the list of questions. We've kept you occupied for almost more than an hour now, but it was an absolute honor, and I really liked. I mean, I got to educate myself despite of knowing people from the Merchant Navy family in my close circle. I have educated myself by quite a lot in this discussion, and I am sure even those individuals who have no idea of merchant navy or those जिन्होंने basic research करके रखा होगा, they will be left absolutely enriched once they get an opportunity to listen to this Yeah. conversation. Thank you so much for joining in, sir. Thanks a lot. Thanks, Amrish. It was my pleasure. Thank you so much. Thank you.